دہلی کی تہذیب و تمدن، اردو تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرنے والی سفیر اردو محترمہ کامنہ پرشاد صاحبہ کی ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں احمد فراز کے ان دو مصروں کے ساتھ کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ محترمہ کامنہ پرشاد صاحبہ۔ سیدھے من کو آن دبوچیں میٹھی باتیں سندر لوگ، میر نذیر کبیر اور انشا سب کا ایک گھرانہ ہوں۔ مہمان خصوصی جناب ایم جے اکبر، پروفیسر طارق منصور صاحب، پروفیسر سید عین الحسن صاحب، ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، ورلڈ اردو کانفرنس کے روح رواں شمس اقبال صاحب، اور آپ سب محبان زبان و ادب اور عاشقان اردو۔ ہندوستان ایک کثیر لسانی ملک ہے۔ یہاں انیک بھاشائیں، بولیاں اور تہذیبیں اور انگنت مذاہب شاد و آباد ہیں۔ یہاں کوس کوس پر پانی بدلے، چار کوس پر بانی۔ ہمارے آئین میں 22 بھاشاؤں کو مانیتا دی گئی ہے، جیسا کہ شمس صاحب نے بھی فرمایا۔ ان کے علاوہ بھی نہ جانے کتنی بولیاں ملک میں بولی جاتی ہیں، اور زبانوں کی یہی کثرت ہندوستان کی پہچان ہے۔ اور زبانوں کی اس انیکتا میں جو ایکتا نظر آتی ہے، اسی کا نام اردو ہے۔ اگر تاریخ پر نظر ثانی کریں تو صدیوں پہلے ہندوستان میں مغرب سے لوگوں کا آنا شروع ہوا۔ وہ اپنی روایتیں، اپنی بولیاں ساتھ لائے، اور جو لوگ یہاں پہلے سے رہتے تھے ان کی بھی اپنی زبانیں اور طور طریقے تھے۔ جب یہ سب بولیاں آپس میں ملیں تو ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے ریختہ اور پھر بعد میں اردو کہا گیا۔ ریختہ صرف اصطلاح نہیں بلکہ امتزاج کی علامت ہے، اردو کی پیدائش کی حقیقت ہے۔ اردو زبان اور شعر و سخن کے بنیاد گزار صوفی شاعر امیر خسرو نے اسے ہندوی کہا۔ فارسی اور کھڑی بولی میں ان کے کہے گئے اشعار بے حد مقبول ہیں اور ہم سب اس سے واقف ہیں کہ زحال مسکی مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کہ تاب ہجراں نہ دار میجاں، نہ لی ہو کاہے لگائے چھتیاں۔ اسی طرح قدیم سنسکرت اور اس دور کی جدید فارسی آمیز ہندوی کا بھی سنگم ہونے لگا اور بنیاد بننے لگی ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی۔ درشٹم تتر وچترتام سمن سام، میں تھا گیا باغ میں۔ درشٹم تتر وچترتام سمن سام، میں تھا گیا باغ میں، کاچت تتر کرنگ شاو نینا، گل توڑتی تھی کھڑی۔ To see those amazing blossoms, I had gone into the garden, where a doe-eyed beauty stood plucking flowers. صوفیوں اور بھکتی سنتوں کی کشادہ ذہنی اور تبادلہ خیال نے ایک ایسی روایت کا آغاز کیا جو ہندوستان کی سیکولر پہچان بن گئی۔ اکبر کے دور حکومت جب تلسی داس نے عام فہم زبان میں امام ہند کی مقدس کتاب شری رام چرت مانس لکھی تو اردو کے کئی الفاظ استعمال کیے۔ بال کانڈ کی صرف 2 پنکتیاں دیکھیے کہ گئی بہور غریب نواجو، سرل سبل صاحب رگھو راجو، جس میں غریب اور صاحب عربی کے اور نواز ظاہر ہے فارسی کا لفظ ہے۔ 15ویں صدی میں گرو نانک دیو جی کی شاعری میں بھی یہی آمیزش ملتی ہے۔ نانک سائر ایو کہت ہے، سچے پروردگارا۔ تو کسی شاعر نے یہ بھی فرمایا کہ احمد پاک کی خاطر تھی خدا کو منظور، ورنہ قرآن بھی اترتا بزبان اردو۔ تو چاہے وہ رام چرت مانس کا پاٹھ ہو
गुरुद्वारे में अरदास हो, जो कि फारसी के अर्जदाश्त का बदला हुआ रूप है, या नमाज हो जो वैदिक संस्कृत के शब्द नमस से बना है, या फिर गिरजा घर में हाजिरी हो। इबादत के लिए भी उर्दू दरकार है। उर्दू खुसरो की रुबाई में भी है और तुलसी की चौपाई में भी। उर्दू सूफियों के कलाम में भी है और भक्ति संतों के उपदेशों में भी। उर्दू कबीर की निर्गुण वाणी में भी है और मीरा के सगुण भजनों में भी। इजहार की कोई सूरत इस जबान के लिए ना आशना नहीं। कोई जज्बा हो, कोई फिक्र हो, इस जबान में राह पा जाती है। आमेजिश का ये सिलसिला पुराना भी है और नया भी। दीगर जबानों से इसी खुलूस की वजह से उर्दू के जखीरे में मुसलसल इजाफा होता रहा है और आज सारी दुनिया उर्दू की शीरीनी की मद्दाह है। शीरीनी से गालिब याद आ गए। गालिब हर वक्त याद आ जाते हैं। जिनके रकीब भी जरूर उर्दू ही बोलते होंगे, तभी उन्होंने फरमाया कि कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा न हुआ। फिर मिर्जा गालिब के चहेते शागिर्द अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा, शहदो शकर से शीरी उर्दू ज़बां हमारी, होता है जिसके बोले मीठी ज़बां हमारी। तो बदलते वक्तों में अपनी मिठास और अपनी पहचान बरकरार रखते हुए उर्दू ने कई किरदार बखूबी निभाए हैं। कभी इश्क के इजहार की जबान बनी, कभी इनकलाब की आवाज बुलंद की, कहीं दबिस्ताने अदब के दामन को वुसअतें दी, तो कहीं फिल्मों के मुकालमात को संवारा, और जब जब सियासत को जरूरत पड़ी उर्दू ने उसे भी सहारा दिया। जब मुगलिया सल्तनत बिखर रही थी तो दिल्ली के नामी गिरामी सुखनवर दूसरी रियासतों में पनाह लेने को मजबूर हो गए, लेकिन जवाल के इस दौर में भी एक सेहतमंद पेशरफ्त ये हुई कि उर्दू अदब और तहजीब हिंदुस्तान के गोशे गोशे तक पहुंच गई। दिल्ली से शायरों की हिजरत के बाद उर्दू की नई बस्तियों में भी शायरी की नशिस्तों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी बदौलत शायरी घरों, गलियों, कहवाखानों, बालाखानों और मदरसों तक पहुंचती गई और नए आशिकान सुखन पैदा करती गई। अब उर्दू का रिश्ता रक्कासा की घुंघरुओं से लेकर फकीर की सदाओं तक था, जिसके नतीजे में उर्दू और मुख्तलिफ मकामी बोलियों के अल्फाज शीरो शकर हो गए। आज के दौर तक आते आते तो यह पहचानना भी मुश्किल हो गया है कि किस जबान या बोली में कौन कौन सी दूसरी जबानों के अल्फाज शामिल हैं। आज अरबी फारसी के कितने ही लफ्ज शुद्ध संस्कृत और हिंदी के शब्दों के साथ इस तरह घुल मिल गए हैं कि अलग किए ही नहीं जा सकते। मसलन शादी, ब्याह, कस्सा कहानी, देर सबेर, धन दौलत, मरहम पट्टी, हंसी मजाक, दीन धर्म, सब्जी मंडी, और ये सिलसिला जारी है। कुछ अल्फाज तो यूं ही दबे पांव हमारी जबानों में आ जाते हैं और कुछ का आना लाजमी है, बदलते वक्त की जरूरत है। अकबर इलाहाबादी के जमाने से ही अंग्रेजी अल्फाज उर्दू शायरी में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। दूर दराज की सरजमीनों से हिंदुस्तान आने वाले लोग अपने इल्म हुनर, अपनी सकाफती रिवायात साथ लाए, जिसे भारत की प्राचीन सभ्यता ने खुले दिल से अपना लिया, और यही रिवायत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी यानी बातचीत, रहन सहन, लिबास, पकवान, रस्म रिवाज से लेकर फनून लतीफ़ा और तर्ज तामीर तक, यानी हमारी शख्सियत, जिंदगी और हमारे काम से मुताल्लिक हर शय में शामिल हो गई। खाने, पकाने, परोसने और खिलाने के मिले जुले तौर तरीके हिंदुस्तानी दस्तरखान की शान है। हर दिल अजीज और बेहद लजीज
हलवा पूरी का मजा लेते हुए हमें ख्याल ही नहीं आता कि पूरी हिंदुस्तानी है तो हलवा अरबी। समोसा जिसे आज सारी दुनिया हिंदुस्तानी मानती है, हमें याद नहीं रहता कि यह संबोसा से है। तामीरात की बात करें तो मरकजी एशिया के मेमारों ने अगर हिंदुस्तानी कारीगरों को मेहराब, गुंबद और मीनार बनाने के गुर सिखाए तो बदले में हिंदुस्तानी तरीक़ाए तामीर अपनाया और फिर कमल, तोरण, स्वास्तिक और मूर्तें पत्थरों का जिगर बन गए। हमारे लिबास और रहन सहन में भी यही असर वाज़े तौर पर नजर आता है। उर्दू फ़लसफ़ाए हयात, गंगो जमन का खुलूस, बैनुल रियासती मिजाज और दौरे जदीद के 100 हुस्न खुद में समेटे हुए है। कुशादा दिल, मेहमान नवाज उर्दू में हिफ्ज़ मरातिब का जो सलीका है वो किसी और ज़बान में कहाँ। अपने लिए खाकसार, अर्ज करना, गरीब खाना, हाजिर होना और आपके लिए बंदा परवर फरमाना, दौलत खाना और तशरीफ लाना। तो ये लिहाजो मुलाहिजा हमारे कल्चर की शिनाख्त है। उर्दू वालों की कुशादा दिली, कुशादा जहनी ने अपनी तहजीब, अपने ज़बान व अदब को शेख बिरहमन की नसीहतों और दैरो हरम की ख्वाहिशों से अव्वल माना है। तो उर्दू महज एक ज़बान नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहजीब है। इसे कदीम से वाबस्तगी भी है और जदीद से मोहब्बत भी। ये हज़ारों साल की विरासत को खुद में समेटे हुए पूरी दुनिया में मकबूल है और इर्तका की नई मंजिलें तय कर रही है। तो इस तरह की बामकसद महफिलें किस किस्म के तगोदौ का तकाजा करती हैं, इससे हम सब वाकिफ हैं। हम डॉक्टर शम्स इकबाल और उनकी टीम को वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने के लिए दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें भी इस महफिल में शरीक होने को कहा। दोस्तों, हिंदुस्तान की सभी ज़बानें बेहतरीन हैं, परिष्कृत और समृद्ध भी हैं। आज के इस ग्लोबल दौर में किसी एक ज़बान के सहारे न तो काम करना मुमकिन है और ना ही जिंदगी जीना। ज़बानें अब सिर्फ इजहार का जरिया नहीं रहीं बल्कि इम्तिजाज और हमाहंगी के साथ अमली जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। बहुभाषी होना बदलते वक्त की ज़रूरत है, जिससे हमारी नई नस्ल बखूबी वाकिफ है, जो एक साथ कई ज़बानों में सोचती, बोलती और काम करती है। और कसीर लिसानी हिंदुस्तान में ये सहजता फितरी है, क्योंकि हमें बचपन से ही कई ज़बानों में एक साथ सुनने और बोलने की आदत होती है। एंड उर्दू इज पार्ट ऑफ आवर DNA। मुख्तसर सी बात यह है कि हम ज़बान को सलीके से बरतें ताकि हमारी गुफ्तगू में तासीर पैदा हो। अल्फाज का सही इंतखाब और ज़बान का सही इस्तेमाल हमारी गुफ्तगू को, हमारे ख़यालात को मुअस्सर बनाता है, वरना अच्छी बात भी बेअसर हो जाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लव कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं या मोहब्बत कर रहे हैं। बस बात पहुंचनी चाहिए, असर होना चाहिए। ज़बानें अगर शाइस्तगी से बरती जाएं तो मधुर, पुरकशिश और पुरतासीर होती हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्म हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा।